हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम सिसराइली की चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले इसमें बताया गया है व्हाई स्टडी द नर्वस सिस्टम एंड द ग्लैंड्स। ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, सो देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस हियर। यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और द मेन चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे कुछ की टर्म्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम. It is a network of cells that carries information to and from all parts of the body. Nervous system is made up of such cells जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक और हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी तक लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूरोसाइंस. It is a branch of the life sciences that deals with the structure and functioning of the brain and neurons, nerves, and nervous tissues that form the nervous system. अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये बना हुआ है न्यूरॉन्स से, नर्व्स से और नर्वस टिश्यू से। ये सब क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये किन चीजों से बना हुआ है, और इसी नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोसाइंस कहते हैं। यहाँ पे भी यही सेम चीज मेंशन्ड है। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। ये एक ब्रांच है, न्यूरोसाइंस की ही एक ब्रांच है that focuses on the biological basis of psychological processes, behavior and learning, and is the primary area associated with the biological perspective in psychology. साइकोलॉजी का जो बायोलॉजिकल एंगल है वो हम न्यूरोसाइंसेस के थ्रू ही एक्सप्लोर करते हैं। हमारी जो भी थिंकिंग है, जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनके पीछे क्या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं वो हम न्यूरोसाइंसेस के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी ये है, दिस इज कॉल्ड नर्व सेल। अब ये जो पार्ट है ये हमारा सोमा कहलाता है, विच इज बॉडी ऑफ द सेल। देन दिस इज एक्सॉन which extends from soma, and then later on it gets divided into branch like structure. ये पूरा भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, but this is the basic component of our neural system. अब इसी तरह से बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आ जाते हैं तो वो एक नर्व बनाते हैं, जैसे हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, वैसे। और जब बहुत सारे नर्व्स आपस में आके जुड़ जाते हैं तो ये एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का काम करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, इन 1887 Santiago Ramon y Cajal, a doctor studying slides of brain tissues, first theorized that the nervous system was made up of individual cells. So Cajal was the first one to describe what nervous system is, what is it made up of, and that's why he is also known as father of modern neurosciences. Although the entire body is composed of cells, each type of cell has a special purpose and function, and therefore a special structure. तो अभी हमने तीन चीजों के बारे में बातें की थी, न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्वस टिश्यूज. So now we are starting with neurons, which is the building block of the nervous system. So he said that we have various type of cells in our bodies like skin cells, muscle cells, and also a special type of cell called neuron, which is a specialized cell in the nervous system that receives and sends messages within that system. Neurons are one
one of the messengers of the body, and that means that they have a very special structure. So neurons basically special type के cells है जिनका काम है messages को receive करना और send करना. Now let's understand the structure. The part of neuron that receives the message is called dendrite, which means tree-like or branch. Because dendrites actually look like one. The dendrites are attached to the cell body or soma, which is part of the cell that contains the nucleus and keeps the entire cell alive and functioning. So soma is the main part of the body. The word soma actually means body, and it is the main thing that is responsible for keeping the whole cell alive and functioning. The axon. Axon is a fiber attached to the soma, and its job is to carry messages out to the other cells. And in the end, the axon branches out into several shorter fibers that have swellings or little knobs on the end called axon terminals. May also be called as presynaptic terminals, terminal buttons or synaptic knob. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब वर्ड्स जो हैं ये एक ही चीज के लिए यूज होते हैं. Axon terminal, presynaptic terminal, terminal buttons or synaptic knobs. Axon terminals, presynaptic terminals, terminal buttons और synaptic knobs. ये सब एक ही चीज हैं. And they are responsible for communicating with other nerve cells. इसी चीज को यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया गया है. ये हमारा एक नर्व सेल है. ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज सोमा और द बॉडी. दिस इंक्लूड्स दिस न्यूक्लियस. ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज एक्सॉन, which is attached to the soma, and it is covered with myelinated sheaths. Not all, but some of the nerve cells are covered with myelinated sheath, क्योंकि उससे क्या होता है, नर्व्स ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, वो ज्यादा जल्दी मैसेजेस को ट्रांसफर कर पाते हैं. और ये जो बॉडी है ये अल्टीमेटली ब्रांच आउट हो जाती है एंड दे फॉर्म अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. और इनके एंड पे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे टर्मिनल नॉब्स होते हैं जिनका काम है मैसेजेस को इन केमिकल फॉर्म रिलीज करना so that it can reach the other nerve cells. अब ये पूरा एक सेल है. इसी तरह से और भी कई सारे सेल्स एक साथ जुड़ते हैं and they form a nerve like a cranial nerve. जैसे ओल्फैक्टरी नर्व होता है, हाइपोग्लॉसल नर्व होता है, इस तरह से और भी कई नर्व्स बनते हैं. एंड ऑल दीज नर्व्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ नर्वस सिस्टम. अब ये जो माइलिन शीथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूअस नहीं है. इसने सेल बॉडी को कवर तो किया हुआ है लेकिन बीच बीच में गैप्स हैं. ये देखिए, ये जो गैप्स हैं इनको कहते हैं नोड ऑफ रैनवेयर. So axon is covered with myelinated sheath, which is shown with this blue color. But between these sheaths, there are gaps which are known as node of Ranvier. तो इससे क्या होता है, हमारे जो मैसेजेस हैं वो इस तरह से जंप कर पाते हैं and the loss of energy is less and the efficiency of neurons increases. अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली दो टाइप के नर्व सेल्स से बना हुआ है. वन इज न्यूरॉन or our typical nerve cell, and the another one is glial cells.
अभी हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, इसका डिटेल में स्ट्रक्चर समझा है। नाउ लेट्स सी व्हाट ग्लियल सेल्स आर। ग्लियल सेल्स आर दी सपोर्ट सेल्स जो हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके, और उसके थ्रू ये न्यूरॉन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करते हैं। अब जो मेन ग्लियल सेल्स हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लियल सेल्स दो तरह के होते हैं। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, उसमें अलग ग्लियल सेल्स होते हैं। और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें अलग ग्लियल सेल्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स विच इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल्स। इनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी हम समझ लेते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का क्या काम है? माइलिन शीट प्रोड्यूस करना। जो हमारा एक्सॉन होता है न्यूरॉन का, उसके ऊपर एक माइलिन शीट की कवरिंग होती है। वो जो कवरिंग होती है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। देन कम्स एस्ट्रोसाइट्स। इनका मेन काम है क्लीनिंग। जो भी डेड सेल्स हैं या जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं हमारे न्यूरॉन्स के अराउंड, उसको क्लियर करना एस्ट्रोसाइट का काम है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स ब्लड ब्रेन बैरियर। देन कम्स माइक्रोग्लिया। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम इन्हीं का है। जो एपेंडाइमल सेल्स है, their main function is to maintain the movement of cerebrospinal fluid, which is CSF. Now coming to glial cells of PNS. Schwann cells, इनका सेम ओलिगोडेंड्राइट्स वाला फंक्शन है। बस जब वो सीएनएस में होता है तो उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं, और जब वो पीएनएस में होता है उसको श्वान सेल्स बोलते हैं। मेन आपका यही सेल है जो इम्पोर्टेंट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल्स, क्योंकि इनका काम है माइलिन शीथ बनाना, और इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। सैटेलाइट सेल्स न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करते हैं, और एंटेरिक सेल्स काफी सारे जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे सिक्रीशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। इस तरह के काफी सारे फंक्शंस को यही फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इन्हीं ग्लियल सेल्स को डिस्कस किया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस हैं, like autism spectrum disorder, degenerative disorders such as Alzheimer's disease, and psychiatric disorders including major depressive disorders and schizophrenia. इन सब में भी ग्लियल सेल्स का रोल काफी इंटेंसिवली पढ़ा जा रहा है। अभी मैंने आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स के बारे में बताया था। यहाँ पे उसी चीज को डिस्कस किया गया है कि इनका क्या फंक्शन होता है माइलिन शीट प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे माइलिन शीट का फंक्शन बताया गया है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द न्यूरल इम्पल्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एक बार आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन। दिस कंटिन्यूज हियर। आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया है। नाउ आई होप आपको हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर याद होगा। ये ऐसे हमारे सोमा के डेंड्राइट्स हैं। यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये हमारा एक्सॉन है जो आगे ब्रांच आउट कर जाता है।
अब ये जो पार्ट है हमारा, जहां से एक्सॉन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये जो एक्सॉन हिलॉक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो भी हमारा नर्व इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब इमेजिन कीजिए ये हमारा नर्व सेल है। इस नर्व सेल के बाहर हमारे काफी सारे पॉजिटिव सोडियम आयंस हैं और काफी सारे नेगेटिव क्लोराइड आयंस भी हैं। Inside the cell, there are many potassium ions and negatively charged protein ions. तो अब क्या हो जाएगा, बाहर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर नेगेटिव आयंस है और बाहर पॉजिटिव आयंस है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि रिलेटिवली बाहर का चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, इसीलिए अंदर का चार्ज रिलेटिवली नेगेटिव है। अब ये जो हमारा सेल है, इसमें 3 तरह के गेट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सोडियम पोटेशियम गेट, then there is sodium gated channels and potassium gated channels. ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसके थ्रू Na कभी भी अंदर आ सकता है, K कभी भी बाहर जा सकता है। बट ये जो गेटेड चैनल्स हैं, चाहे सोडियम के हैं चाहे पोटेशियम के हैं, इनको एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए, तभी ये अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं इस गेट के थ्रू। अदरवाइज ये गेट बंद रहता है। अगर इसको प्रॉपर पोटेंशियल नहीं मिल रहा है तो ये बंद हो जाएगा। अब ये जो हमारा स्टेट है, ये रेस्टिंग स्टेट है। इस वक्त कोई भी इम्पल्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी बन गई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये अब पोलराइज्ड स्टेट भी है। और इस वक्त जो हमारे नर्व सेल का पोटेंशियल है, दैट इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल, which is -55 MV। अब जब भी कोई स्टिमुलस आता है और वी कैन से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, उस केस में क्या होता है, Na आयंस अंदर आ जाएंगे और अंदर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इस टाइम पे नर्व सेल का जो पोटेंशियल है उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। बट दिस इज नॉट द नॉर्मल स्टेट। होना क्या चाहिए था कि बाहर हमारे Na+ आयंस होते और अंदर हमारे K+ आयंस होते। तो अभी क्या हुआ है, अंदर Na+ आयंस ज्यादा आ गए हैं। उसके लिए क्या होगा, जो हमारी Na गेटेड चैनल थे वो ओपन हो जाएंगे और हमारे Na आयंस बाहर जाने लगेंगे। तो अब क्या होगा, टू रीस्टोर द बैलेंस, हमारे पोटेशियम गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा और बाहर हमारे पोटेशियम आयंस आ जाएंगे। तो अब वापस से क्या हो गया, बाहर हमारा पॉजिटिव हो गया है, रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया है, और अंदर हमारा फिर से नेगेटिव हो गया है। बट प्रॉब्लम कहाँ है,
कि जो बाहर पॉजिटिविटी है वो Na आयंस के वजह से होनी चाहिए थी, K+ आयंस के वजह से नहीं। So although now our cell is repolarized, मतलब जो हमारी पॉजिटिव साइड होनी थी वो दोबारा पॉजिटिव हो गई है, बट आयंस अभी भी गलत हैं। बाहर हमारे Na+ ज्यादा होने चाहिए थे, अंदर हमारे K+ ज्यादा होने चाहिए थे। तो अब क्या होगा, जो हमारा Na और K पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिव हो जाएगा। बाहर चले जाएंगे हमारे Na आयंस और अंदर आ जाएंगे हमारे K+ आयंस, and the balance will be restored and our cell will be polarized again like it was at the starting. So this is how neural impulse happens. अब ये एक सेल था, इस एक सेल में न्यूरल इम्पल्स जनरेट हुआ, पहले पोलराइज्ड स्टेट में था, फिर डीपोलराइज हुआ, फिर रीपोलराइज हुआ और वापस से पोलराइजेशन आ गया। अब जब एक सेल हमारा दोबारा पोलराइज हो चुका है पूरे साइकिल के थ्रू, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो उसने केमिकल्स के फॉर्म में दूसरे नर्व को ट्रांसफर कर दिया और वहां पे दोबारा यही सेम साइकिल चलेगी। वो नर्व अब फिर से डिपोलराइज होगा, फिर डिपोलराइज होगा और फिर आगे उसके आगे के नर्व्स के साथ भी सेम साइकिल चलेगी, एंड दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, and this is how the nerve impulse transfers from one cell to another. The next topic of this chapter is neurotransmission. कैसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक मैसेज जाता है। I'll be explaining this in my next video, so please stay tuned and do like and subscribe my channel. Till then, goodbye.